ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ। 16 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ UT ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, क्योंकि हुण उम्मीद है कि सच सामने आवेगा। जल्द ही अदालत दे वल्लों रस्मी ऑर्डर भी जारी कर दिते जाने ने, जिस दे विच साफ होवेगा कि CBI किन्ने समय दे विच जांच पूरी करेगी। दूजे पासे पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल चीमा दा कहना है कि मामला जांचधीन है, जांच होनी चाहिए है। पहला परिवार ने चंडीगढ़ पुलिस दे कोल जांच की मांग की ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ SP ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੂੰ 5 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨੱਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ 8 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 360 ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ CBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ FIR ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ CBI ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। मैम आज जो कोर्ट में सुनवाई को लेकर आज फैसला आया है, किस तरह से देखते हैं आप और क्या फैसले में आया है? जी, आज ये कोर्ट में CBI को मार्क कर दी गई है। 120 दिन की लड़ाई जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ, मैं रास्तों में घूम रही हूँ, कभी कोर्ट्स में, कभी पुलिस स्टेशन में, कभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए। मैं थक चुकी हूँ, मगर फिर भी हार नहीं मानूंगी जब तक सज़ा नहीं मिली। आपने देखा होगा माननीय जज साहब ने, जैसे मुदगिल सर ने क्वेश्चन रेज करे थे और 2 हेयरिंग के बाद तीसरी हेयरिंग में उनका बेंच चेंज हो गया था। उसके बाद अनूप चितकारा सर के पास एंटीसिपेटरी बेल की थी, उनके भी ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग थे। आज राजेश सर ने भी इतने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिए, दे हैव बिकम लाइक गॉड फॉर मी। मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि जस्टिस दिलाने में पब्लिक को इस तरीके के जजेस की ज़रूरत है हमारे पंजाब और हरियाणा, क्या पूरे देश में, जो एक सच्चाई को समझते हैं। दे आर सिटिंग इन दिस चेयर, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, दे सी द पुलिस परफॉर्मिंग किस तरीके से, उनको समझ है क्योंकि वो रोज़ ये चीज़ें देखते हैं। उन्होंने सीधा SSP को बोला कि 4 महीने से तुमने उनको पकड़ा रही, तुमने बोला 4 महीने में इंक्वायरी ख़त्म करनी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 3 तारीख को करोगे। आपने इंक्वायरी ख़त्म करनी 10 दिन में कर सकते हो। मगर उन्होंने बोला कि आपने 23 तारीख को एंटीसिपेटरी बेल वो हो गई, उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं करी है 4 महीने से, आप उनको पकड़ नहीं रहे हो, पकड़े बगैर आप सारे जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उनको कम करने की कोशिश कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं से प्रेशर है और आपने ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो गए। उन्होंने क्लियर टर्म्स में बोला कि आप ये FIR को बोगस करने की कोशिश कर रहे हो कि इसको माइल्ड करके ख़त्म कर दिया जाए कि कोर्ट में कुछ बचे ही ना। तो ये इन्वेस्टिगेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप फेयर नहीं करोगे। और उन्होंने शिफ्ट कर दी। हमारे लॉयर प्रीतिंदर जी और दीपेंद्र विर्क सर वो और विश्वन और अमृत, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी हमारे लिए। प्रीतिंदर जी ने तो आज जो कहते हैं ना, मेरे दिल की और मेरे हस्बैंड, मेरे पूरे फैमिली की भावनाएं कोर्ट के आगे रखी। एक एक पॉइंट जो मेरे मन में था उन्होंने उसके आगे बहस करी और आज उनकी वजह से, प्रीतिंदर जी की वजह से आज हमारे को ये CBI मार्क हुई। जिस तरह से चंडीगढ़ पुलिस को इंक्वायरी दी गई,
तो क्या वो काम नहीं कर रहे थे, क्या क्या लगा? जी वो काम नहीं कर रहे थे, वो उल्टा पुलिस वालों की हेल्प करते हुए पुलिस के लिए 164 के बयान करके ये बेल 307 जैसे उन्होंने कहा 10 तारीख को हमने 307 हटा दी। तो जज साहब ने बोला आप कौन होते हो, आप हटाने का आपका नहीं है, आपने कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी है तब डिसाइड होगा कौन सी धारा हटनी है। आपने 307 में पकड़ा नहीं है और पहले आपने स्टेटमेंट ली नहीं और आपने धारा हटा दी। तो इसमें आपका इंट्यूशन पता लग रहा है, इंटेंशन क्या है आपकी। और जज साहब ने काफ़ी खींचा और बोला कि यू आर नॉट वर्थ डूइंग द इंक्वायरी और वी आर हैप्पी दैट सीबीआई गई है तो पता लगेगा ये इंक्वायरी वहाँ से शुरू होएगी जहाँ से एफआईआर डिले हुई थी और ये जहाँ से आए थे जो मंडौर एनकाउंटर कल 17 तारीख है उसकी भी सीबीआई में मांग के लिए डाली हुई है। तो लेट्स सी कल भी शायद उस माँ को भी जस्टिस मिले।